Am I audible now? Yeah, you are audible. Am I? Yes, now you are also audible. Right, right, right. Thank you, Shwani sir. Thank you so much. You have accepted our invitation. Thank you very Uh, much, sir. to the audience, I just want to introduce you. Today we have Mr. Shwani Kapoor. He's a legal consultant and men's health activist. So, sir, today I have a very I have actually have a lot of questions today, but to start with, please do tell us about your school and college days. I just want to start from there now. Anurag, I belong to a very small town, Hisar in Haryana. I did my Yes, sir. education, graduation there. Then I did my MBA from Bikaner. That is another small town. So basically, I'm a small town guy, I would say. Uh, Right, I have worked in Delhi, Mumbai, uh, Bangalore, Chennai. So basically, right, mainly all metros. So and right, Delhi, of course. So right. it was always that I used to come back to Delhi from any of these stations. I have worked a couple of stints in each and every place. Okay, Then in 2008, I was hit by 498A, that okay, is infamous dowry law. So that got me interested in men's right as well as law. And then I joined law course. So that is how the okay, things are as of now. okay, okay. Uh, so we'll come to the part of 498 in a moment. Yeah. Initially, Yes. sir, मैं ये जानना चाहूँगा, let's take it up as a legal consultancy also. अगर हम law की बात करें, तो स्कूल और कॉलेज से ही रूल्स रेगुलेशंस नियम कानून और आगे जाके ये चीजें प्रॉपर आती हैं हमारी लाइफ में। Uh-huh. तो आपके नजरिए से सर अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो हमारा लॉ अभी तक कहाँ तक पहुंचा है या कितना स्टेबल हुआ है या अभी भी कहाँ उसमें थोड़ी सी मुश्किलें चल रही हैं, आप इसमें क्या नजरिया रखते हैं सर? Anurag, let me be very candid. Law यस touches each and every moment of yours. सर। So, whether you are watching TV, using this phone, this app, there is law everywhere. By using this app, you have signed an agreement with the provider that you will utilize it for such and such purposes. The यस Similarly, you have given your consent to use your data for the promotions. यस Even the phone has a legal agreement, a big legal agreement, which you just say yes, I agree. You know. यस यस So एब्सोल्युटली। you move out of your house, there is a law. You have to walk on the left side. You have to drive. You have to wear a seat belt. You have to have a valid license. राइट You go buy something, buy a bread. There is a law that it cannot be beyond MRP. So राइट law basically touches every aspect of our life. राइट We sometimes don't know that we are following a particular law or a regulation or a rule. So that is there. Now coming to in school or college, how we are not aware of. We are aware of law. We are taught some law by the way of civics. We call the subject as civics. So their basic training of law or basic outlines of law are given to us. Though it is राइट most of them are quite mundane, but yes, it is provided to us. ओके। Sir, coming on to you being a legal consultant, so how did these things come into your career और इसमें आपका कैसा रहा overall? Uh, as I told you that I got interested in law and I joined Okay, law. The initial thought was to practice as an advocate, but then somehow at some stage I realized that I am not fit for that particular job, or maybe because my other business interests were in clash with a legal profession. I run a very successful copyright agency as well, so and other okay, some other businesses also. I am where I am partners and things like that. So if I were to become an advocate, then I would have to give up all these things. But there were a lot of people who used to come to me, call me, and ask me for advices. So I said, why not make it a consultancy? Uh, and the reason being that
people don't value what is given free. And then there is also a time constraint which everybody has, you know. So all things put together, then I thought, why not utilize my knowledge base as a consultant as well. So I am consulting a lot of people now, mostly related to men's right, but even beyond that, in copyright matters, in patents, in trademark. So all these things are happening in recovery. So all these things I am doing consultancy basically. Okay. So now let me come to the main thing, men's help, men's right help. So ये कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे आप थोड़ा बताइए कि क्या मेन क्राइट आपका देखो, वो था? अनुराग, जाके पैर ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तो भाई सीधी सी बात यह है कि खुद भुगतभोगी रहे हैं, ग्रसित रहे हैं 498 इन फेमस डॉगरी लॉ से। हाँ जी, बहुत बुरा लगता है जब आपने कोई अपराध ना किया हो, हाँ, सोचा भी ना हो, हम्म, कोई अपने फायदे के लिए उसका मिसयूज करे आपके खिलाफ। तो फिर जब मेरे ऊपर केस हुआ तो मुझे पता चला कि मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ये तो रूटीनली मिसयूज होता है इस लॉ का। कुछ एनजीओज थी उस समय जिनके साथ मैं जुड़ा, एक दो वेबसाइट्स थी जहाँ पे मैंने लिखना शुरू किया, बट फिर मैंने रियलाइज किया कि इन एनजीओज में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। तो एक एनजीओ हमारी भी एस्टेब्लिश हो गई, ओके, उसमें लोग आने लगे। पर मेंस राइट से केसेस खत्म होने के बाद भी मेंस राइट से नाता छूटा नहीं, क्योंकि अ, आग बहुत ज्यादा थी, लगी बहुत ज्यादा थी आग। बहुत ज्यादा जी, तो वो आपने भी महसूस किया है। जी तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो अ, आप मिले हैं तो महसूस किया होगा कि तो लोग आते रहे, जुड़ते रहे, बातें होती रही, तो ये सिलसिला चलता रहा। तो फिर इसे एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया गया, जिसको हम साउदर व्हाट्सएप हेल्पलाइन ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। ओके, आज तकरीबन 16,500 मेंबर इस समय एक्टिव हैं उस पे, जो अपने वेरियस प्रॉब्लम्स, मैट्रिमोनी से लेके मिसयूज ऑफ रेप लॉ टू मिसयूज ऑफ मोलेस्टेशन टू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इन सब चीज़ों के बारे में एडवाइस लेते रहते हैं, अपनी समस्याएं डिस्कस करते रहते हैं। ग्रुप बेस्ड इनिशिएटिव है। बहुत से लोग अपनी नॉलेज शेयर करते हैं वहाँ पे। साउदर एक वेबसाइट है, पहले उस पर एक फोरम हुआ करता था, फोरम अब हमने हटा दिया है, क्योंकि फोरम इन जनरल हैज बीन पासे। अब इंटरनेट पे कोई फोरम वगैरह नहीं होते, तो लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्यादा हैं, तो हम भी वहीं पे हैं। ओके। सर अब मैं स्पेसिफिकली डिवोर्स पे आता हूँ। इट्स बेसिकली, इफ आई अंडरस्टैंड, बेसिकली एक मैरिज को नल एंड वॉइड करार देने का एक लीगल तरीका माना जाता है। और जैसा कि हम कहते हैं कि मैरिज इज अ थिंग वेयर टू पीपल जॉइन हैंड्स, जो कि एक साथ रहने के लिए। सो डिवोर्स एक कौन सी स्थिति में ऐसा बन चुका है कि यहाँ चीज़ें बिल्कुल ही पलट चुकी हैं और मामले आज की डेट में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, और फ्रैंकली बोलूँ तो उल्टे हो गए हैं, जहाँ फ्रैंकली आदमियों पे भी इतना गलत इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गए हैं, जो कि मैंने भी देखा है कई ऐसे मामलों को। अनुराग, एक पहले मैं एक कुछ आप जोक याद अपना आए। वो बताए। जी जी, हाँ, एक जोक याद आया, वो शेयर कर देता हूँ। ज़रूर एक ज़रूर आदमी मर ज़रूर। के स्वर्ग पहुंचा, तो जी भगवान ने उससे कहा कि उम्मीद है आपको पृथ्वी पर बहुत मजा आया होगा, आप बहुत कष्ट भोग के हैं, आपको स्वर्ग में जगह। अरे, मजे वजे की बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, वो टीम कौन सी है, मेरे को उनसे बात करनी है। तो, बिल्कुल, तो कुछ देखो, कोई भी मैरिज परफेक्ट नहीं होती है, पर जब चीजें हद से ज्यादा बिगड़ जाती है तो मैरिज डिसॉल्व होती है। और डाइवोर्स एक तरीका है जिससे मैरिज डिसॉल्व होती है। जहां आपने बात कही कि नल एंड वॉइड, तो वॉइड मैरिज एक अलग कॉन्सेप्ट है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, एक बहुत सारे मैट्रिमोनियल मैरिज एक्ट में। जहां मैरिज जो कि ठीक से नहीं चल रही है, उसे एक पक्ष के या दोनों पक्षों की रजामंदी से, या तो एक पक्ष के कहने पर या दोनों पक्षों की रजामंदी से उसे डिसॉल्व किया जाता है, उसे डाइवोर्स कहते हैं। ये एक कानूनी तरीका है जिसका
तात्पर्य ये है कि ये शादी अब एग्जिस्ट नहीं करती है, आप एक दूसरे के बंधन से आजाद हैं। ओके। हिंदुस्तान में जितने भी लॉज हैं, मैट्रिमोनियल लॉज हैं, इसमें फॉल्ट इज द ओनली ग्राउंड ऑन विच यू कैन सीक डाइवोर्स या फिर म्यूचुअल कंसेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान जाए और कोर्ट में जाके कहे जी अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, मुझे डाइवोर्स दे दीजिए। तो ये वेस्ट के कुछ कंट्रीज के अंदर इस तरह के नियम और कानून भी हैं। क्योंकि फॉल्ट ग्राउंड है तो इसलिए फॉल्ट जो एक दूसरे के फॉल्ट हैं उसे बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, क्योंकि नॉर्मल फॉल्ट से मेरे को आपसे आपकी शक्ल पसंद आनी बंद हो गई है या किसी और वजह से आपसे कोई परेशानी है, छोटी मोटी परेशानी, कोर्ट का पहला जो कोशिश होती है वो ये होती है कि ये घर बसा रहे, ये शादी चलती है। पर जब स्थितियां हद से ज्यादा बिगड़ जाती हैं, जहां एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं होता है, तब तलाक की बात होती है। अब क्योंकि क्रुएल्टी या दूसरे का फॉल्ट इतना ज्यादा होना चाहिए कि ये शादी बच नहीं सकती, इसके लिए लोग बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। अब लड़कियों के पास कुछ ज्यादा चीजें हैं बताने के लिए, बढ़ा चढ़ाकर दहेज मांगता है, मारता पीटता है, अननेचुरल सेक्स करता है। तो ये चीजें लड़कियों के पास हैं, लड़कों के पास शायद ये चीजें, लड़का दहेज ये नहीं कह सकता कि लड़की दहेज मांगती है, लड़का ये नहीं कह सकता कि ये मेरे को मारती पीटती है, क्योंकि शायद लोग बिलीव ना करें, पर ऐसे किस्से कम नहीं है जहां लड़कियां लड़कों को मारती हैं। तो इसलिए जो है इस कानून का भी बहुत दुरुपयोग होता है। डिवोर्स लॉज में भी लोग पोथियां भर भर के झूठ लिखते हैं और करक्स जो होता है उसका कुछ नहीं होता है, लंबी कहानी लिखी होती है जी फलाने दिन भी मारा, उस दिन भी मारा, उस दिन भी मारा, शादी से अगले दिन से मारना शुरू किया, 7 साल तक मारते रहे, अब मेरे लिए अति हो गई। अरे भाई 7 साल में अति नहीं हुई तो एक थप्पड़ से अति कैसे हो गई? कैसे होगी? तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो सर इसमें इनिशियल वे में शुरुआत में देखा जाए तो इसमें पहले तो होता था कि जैसे कार्रवाई में जिनके नाम डाले उनको जेल हो जाती थी, उसके बाद कुछ बदलाव हुए, चेंजेस लाए गए जैसे। अब आप बात कर रहे हैं डाउरी लॉ की जी या डाउरी। 498A की। जी तो जी बिल्कुल। 498A जब बना था 1983 के अंदर, 1986 में, तो जी उस समय एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था जिसको हम कहते हैं न्यूज, चाहे वो फेक न्यूज हो या मीडिया, मीडिया अपने आप में एक पिलर है। तो एक समय था जहां जब रोज अखबार में खबर आती थी फलानी जगह पे औरत जल के मर गई, ये दहेज हत्या है, इसके बारे में कोई कानून नहीं है, फलानी औरत ने आत्महत्या कर ली, घर वालों ने दहेज का आरोप लगाया, दहेज कानून बड़े लचर है हमारे देश में, सख्त कानून की आवश्यकता है। तो एक कानून बनाया गया जिसको कहते हैं दहेज हत्या अधिनियम, 304B आईपीसी वो है, और साथ ही एक दहेज विरोधी अधिनियम 1961 का है हमारे यहाँ, पर एक दहेज की क्रुएल्टी के लिए एक सेक्शन ऐड किया गया 498 के, जिसमें कि लड़की जिसके ऊपर दहेज की वजह से प्रताड़ना हो रही है वही जा सकती थी, पुलिस को कंप्लेंट कर सकती थी, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था। धीरे धीरे शुरू में शायद यूज इसका हुआ होगा या मिस यूज हुआ होगा, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं वो समय नहीं जानता, पर 2086 में महज 2000-2500 केस पूरे हिंदुस्तान में पूरे साल में हुआ, पर धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ी। फिर बाद में ऐसा होने लगा कि इनमें सेटलमेंट होने लगी। जब लड़की पक्ष था उसे पैसा देकर लड़के वाले जो हैं या तो बयान बदलवा लेते थे या सेटलमेंट होकर हाई कोर्ट चले जाते थे जी कि हमारा आपसी रजामंदी हो गई और इस केस को क्रैश कर दिया जाए। तो इसकी देखा देखी अचानक लोभ जो है सोसाइटी में बहुत बढ़ गया। हर मैरिटल डिस्कोर्ड चाहे किसी वजह से हो, चाहे लड़की का चक्कर हो, लड़के का चक्कर हो, दहेज, ओके। लड़की की माँ से नहीं बनती, अलग रहना है, दहेज, लड़के से पैसे मेरे भाई को बिजनेस के लिए चाहिए, दहेज। तो इस दहेज कानून का इतना ज्यादा मिसयूज होने लगा कि लोग 10-10 साल के बाद शादी के, 15-15 साल के बाद कोर्ट कचहरी में जाके खड़े हो जाते हैं जी मेरे से दहेज मांगा जाता है। हमारे मीटिंग के अंदर एक लगभग 60 साल के बुजुर्ग आते, उनकी 57 साल की बीवी ने उनके ऊपर दहेज का मुकदमा दायर किया। उनके मतलब इस दोनों एज बच्चे, तक जाके। हाँ हाँ,
उनके दोनों बच्चे जवान हो चुके, शादी हो चुकी है उनकी। ओके ओके। पर क्योंकि कानून है और महिलाएं इसका दुरुपयोग या सदुपयोग जैसे भी आप समझना चाहे कर सकती हैं, तो कर रही कर हैं। सकते। जी वो जी जी पैसे के लिए कर रही हैं, वो बदला लेने के लिए कर रही हैं, ये एक दीगर जी बात जी। है। तो ऐसे केसेस, अभी मैं इसी पे कंटिन्यू रखना चाहूंगा, डाउरी केसेस 498 है। अब जाके अगर हम जैसे 2020 तक हम आ चुके हैं, कुछ कंट्रोल हुआ है हाँ हाँ, इस आप, समय में? हाँ, जी मैं इस बात के बारे में भूल गया था बताना। तो जी जी हुआ ये कि जब बहुत से ऐसे किस्से आने लगे तो लोगों ने रिट्स लगाई, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की। सबसे पहली गाइडलाइन, आप हैरान रह जाएंगे, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 1989 में जारी की थी कि इस ओके कानून का दुरुपयोग होने लगा है। 1986 का कानून, 1989, 1999 में जाके उन्होंने गाइडलाइंस जारी करी कि जो लोग घर में नहीं रहते हैं, एक साथ नहीं रहते हैं, उनके नाम विदाउट प्रॉपर प्रूफ ना ऐड किए जाए। क्योंकि इस कानून में क्या होता है, पति या पति के रिश्तेदार, तो मेरी मामी का, चाची का, फूफी का, बहन का, जीजे का, और कई बार इतने दूर दूर के रिश्तेदार, उनके भी नाम लिखवा दिए जाते हैं। जी जी एक आधा किस्सा शायद आपने कभी अखबार में पढ़ा हो, एक 2 साल के, 2 महीने के बच्चे का नाम लिखवा दिया गया इसमें, हाँ हाँ जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कुत्ते आप। का नाम लिखवा दिया गया इसमें। क्या बात कर तो रहे हैं? अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, आप अखबार पढ़िए, आप अखबारें पढ़िए, आप आर्काइव्स देखिए। 2 महीने वाला तो उसमें बेल लेनी पड़ी थी उस लड़की को कि गिरफ्तार ना हो जाए। 2 महीने के ओके बच्चे को बॉम्बे सेशन कोर्ट से बेल लेनी पड़ी, ओके एक्यूज बना दिया उसे। ओके। तो जब इस तरह के मिसयूज, दुरुपयोग होने शुरू हुए तो हाई कोर्ट्स ने गाइडलाइंस लेके आए। 2008 में, 2010 में कानून के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, 41A CRPC लागू किया गया, जिसमें ये कहा गया कि जिस भी क्राइम में 7 साल से कम की सजा है, उसमें तुरंत गिरफ्तारी ना की जाए, भले ही वह ऑफेंस नॉन बेलेबल है। 2014 में अरनेश कुमार जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट ने डाउरी लॉ के ऊपर एक एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस दी। उसके ओके बाद 2017 में राजेश शर्मा जजमेंट आई, जो कि 2018 में काफी डिल्यूट कर दी गई। तो 2017 में जो जजमेंट आई थी, राजेश शर्मा जजमेंट, वो तो बेसिकली इट वाज ऑलमोस्ट एज किलिंग दिस dowry law, because Supreme Court realized that this law is being misused left, right, and center. राइट राइट। सो सर, अगर हम बात करें सिमिलर केस को ही लेते हैं, अभी डाउरी पे ही चलेंगे। सो डज इट ऑल्सो मेक अ, उसका इम्पैक्ट होता है कि मान लीजिए किसी ने इंटरकास्ट मैरिज करी, या कोई एनआरआई है उसकी मैरिज हुई, ऐसे केसेस में भी कुछ फर्क पड़ता है? अनुराग, देखिए, एनआरआईज को थोड़ी ज्यादा परेशानियां सहन करनी पड़ती हैं। ओके इंटरकास्ट मैरिजेज में भी थोड़ी ज्यादा परेशानियां शायद सहन करनी पड़ती है, क्योंकि बीच का कोई रास्ता नहीं होता। ओके पर ये एक ऐसा कानून बन चुका है जिसका दुरुपयोग हर जगह होने लगा है, खासतौर पे उन ट्राइब्स में भी जहां लड़का लड़की के साथ जाके रहता है। बहुत सारी हमारी कम्युनिटीज हैं जहां मैट्रियार्कल फैमिलीज हैं, कुछ ट्राइब्स जी हैं नॉर्थ ईस्ट के जी। जहां पे ओके। लड़का शादी होके लड़की के पास जाता है, वो दहेज देते हैं। अच्छा, दी अदर वे राउंड। चल। अदर वे अराउंड भी है। ओके उन ओके कम्युनिटीज में भी 498 लगने लगा। ओके ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये लॉ है। और मिसयूज, जब एक किसी भी कानून का मिसयूज होना शुरू होता है, तो जी। फिर एक अनस्टॉपेबल फिनोमिनन है। प्रॉपर। आप आजकल अखबारों में पढ़ते हो रेप लॉ का कितना मिसयूज है। हाँ 2012 में निर्भया कांड के बाद हाँ जी। कानून तो बना दिए गए, और उसका राइट। दुरुपयोग कभी सोचा भी नहीं। कोई किसी ने मिसयूज प्रोविजन ऐड करने का सोचा नहीं। सोचा सेक्सुअल नहीं। हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में आपने सुना होगा, कितना दुरुपयोग है। अभी पिछले बहुत। साल ही नोएडा में एक एग्जीक्यूटिव ने अपनी बिल्डिंग से कूद कर जान दी। राइट। ओके तो इन सब ओके। चीजों का दुरुपयोग रोकना जरूरी है। हाँ, एनआरआई और इंटरकास्ट मैरिजेज में थोड़ा ज्यादा परेशानी होती, पर बाकियों को ओके कम परेशानी होती है, ऐसा नहीं है। और कानून का दुरुपयोग सिर्फ इनके खिलाफ होता है ऐसा भी नहीं है, सबके खिलाफ होता है। ओके। अच्छा सर, इसमें एक नया पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा। ऑफ कोर्स मैरिज होती है, बच्चे होते हैं, तो चाइल्ड पे क्या असर पड़ सकता है इन केस ऑफ, say, of course, parents getting separated and all? What do you feel psychologically?
अनुराग, इसमें दो अलग अलग विचार आते हैं मेरे दिमाग में, जी और जी सर। दोनों ही विचारों में कौन सा ज्यादा सही है ये मैं नहीं कह सकता, इसलिए मैं दोनों रख देता हूँ। हम ये मानते हैं, मैं ये मानता हूँ कि माँ माँ और बाप दोनों का प्यार बच्चे को मिलना चाहिए। जी पर बहुत सी स्थितियां ऐसी होती हैं जहाँ माँ और बाप एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। बच्चा रोज एक दूसरे से झगड़ा होते देखता है, तो ये एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर माँ बाप बच्चे के हित में ठीक से रह सकते हैं तो रहें, अगर नहीं रह सकते तो वो अलग हो जाए, पर बच्चे को बांटने का प्रयास ना करें। ओके। कोशिश ये भी होनी चाहिए कि बच्चे को दोनों का प्रेम मिलता रहे। शेयर्ड पेरेंटिंग शुड बी द नॉर्म, और बाकी एक्सेप्शन होनी चाहिए, एक्सेप्शन होने चाहिए। अगर कोई चाइल्ड अब्यूजर है, कोई सब्सटेंस अब्यूजर है, कोई किसी का करेक्टर ही खराब है, जी गैर स्त्री या गैर मर्द बच्चे के सामने लेके आता रहता है, ऐसे इंसान बिल्कुल। के साथ बच्चे को बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए। शेयर्ड पेरेंटिंग नहीं होनी चाहिए। बट अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस शेयर्ड पेरेंटिंग शुड बी द नॉर्म, और ऐसा ही होना चाहिए। बच्चे को दोनों के प्यार की आवश्यकता है। जी कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चे के लिए बना के रखें, पर अगर नहीं रख सकते हैं, अलग होना चाहते हैं, तो कम से कम बच्चे को कम से कम कष्ट उसमें दिए जाए। जी जी और आज मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे दोनों बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, जी जी और मैं अकेला ऐसा पेरेंट नहीं हूँ जो सेपरेटेड है। दोनों की क्लासेस में, दोनों ही हाँ हाँ। बच्चों की क्लास में कम से कम एक और ऐसा बच्चा है जो सेपरेटेड है। ओके। मतलब 40 की क्लास में दो बच्चे आपको ऐसे मिल रहे हैं या तीन बच्चे आपको ऐसे मिल रहे हैं, तो ये धीरे धीरे बढ़ना ही है। तो ये बहुत बहुत दूर नहीं है जहां हम यूएसए की तरह या बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज की तरह सिंगल पेरेंट सोसाइटी, या राइट। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मल्टीपल पेरेंट्स के बच्चे जो हैं एक घर के अंदर रह रहे हैं। ओके सर, ऑल्सो डू यू फील हैज इट रियली बिकम लाइक बहुत, जैसे वो लगता है कि आई एम अ सिंगल मदर, तो वो बड़ा उससे बताना कि हाँ मैं सिंगल मदर हूँ, या कोई बोले कि हाँ मैं सिंगल फादर हूँ, तो क्या ऐसा भी बनता जा रहा है एटीट्यूड लोगों में? देखो यार, सिंगल तो फादर बहुत। या सिंगल मदर अब तो होने नहीं लगे। अब तलाक की वजह से होने लगे, तो पहले भी विडो या विडोअर तो हो ही जाते थे ना। जी। जिंदगी में तो किसी का बस नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एक्सीडेंट्स और एब्सोल्युटली। बीमारी, बहुत सारी वजहें होती थी। बहुत समय से लोग सिंगल पेरेंट रहे हैं। जी पहले सोसाइटी जो थी, या इमीडिएट फैमिली, जो फैमिली बड़ी होती थी, मामी चाचा चाची बुआ मामा, इस तरह के लोग केयर करते थे। पर अब जब फैमिलीज ही बड़ी न्यूक्लियर हो गई हैं, तो ऐसे हाँ। रिश्तेदार भी हर जगह पाना संभव नहीं है। तो जी डेफिनेटली सिंगल पेरेंट को आज ज्यादा परेशानी आती है। और सिंगल पेरेंट के साथ आज की डेट में एक और चीज जुड़ी होती है, जो है लिटिगेशन, जो पहले शायद नहीं होती। ओके। लिटिगेशन अपने आप में एक एनर्जी सैपर है। आप कोर्ट में चाहे वादी बन के जाते हैं, चाहे परिवादी बन के जाते हैं, चाहे आप पेटिशनर होते हैं, चाहे आप रिस्पोंडेंट होते हैं, आपकी खिंचाई दोनों सूरतों में निश्चित होती ही या होती है। होती है। और जो एक कोर्ट कचहरी से गुजर चुका होता है, उसके दिमाग, उसके जहन में, उसके इमोशन में एक बहुत बड़ा स्कैर होता है, स्केयर होता हम्म है, और भय होता है इन चीजों का। तो हम्म ऑफ कोर्स वो आपकी जिंदगी में हर जगह निकलता है, आपके हर रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है। वो आपकी मदरहुड या फादरहुड को भी इम्पैक्ट करता राइट राइट। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि इसके अलावा जैसे एलिमोनी होती है, से इसके थोड़े दो चार एग्जांपल ले लेते हैं। से द husband is not working or is earning less, but is he asked to pay the alimony despite the fact that wife बहुत अच्छा कर रही होती है या वो बहुत अच्छा कमा रही है? इन केसेस में कैसे होता है? व्हाट इफ यू कैन टेल अस समथिंग अबाउट द एलिमनी पार्ट, ये कैसे चलता है? है। अनुराग, एलिमनी का जो कानून है हिंदुस्तान में, अधिकतर रिलीजियस लॉज में ये जेंडर न्यूट्रल है। ओके। जो ज्यादा कमा रहा है उससे, जो कम कमा रहा है उसे ही एलिमनी मिलेगी या मिल सकती है।
अधिकतर केसेस में लड़का ज्यादा कमा रहा होता है, तो ये एक माइंडसेट है कि सिर्फ लड़के को ही एलिमनी देनी होती है। दूसरी बात ये है कि दहेज का ये डिवोर्स का केस लड़की अकेला डिवोर्स का केस नहीं करती है, उसके साथ बहुत सारे केसेस जुड़े होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस 498 ए। बिल्कुल अब उन बिल्कुल। छुटकारा पाने के लिए भी लड़के को पैसे देने पड़ते हैं, हम्म, क्वेश्चन कराते हुए। हम्म, दूसरी बात, हमारी सोसाइटी में लड़कियां जो हैं दे ऑलवेज मैरी अप। अगर लड़की 10,000 कमा रही होगी तो उसकी शादी जिस लड़के से होगी 50, वो जाए 30, 35, 40 कमा रहा होगा। बिल्कुल। ऐसा बहुत कम होगा कि 10,000 कमाने वाले लड़के की शादी 50,000 कमाने वाली लड़की से हो जाए। अरेंज मैरिज में तो ऐसा कतई ही नहीं होगा, राइट। कतई ही नहीं होगा अरेंज मैरिज में। ठीक है, लव मैरिज में शायद कोई एक आधा चांस ऐसा मिल जाए, बट वहां भी इनकम का इतनी डिस्पैरिटी नहीं हो सकती। पर ऐसे आपको प्रारूप और ऐसे एग्जाम्पल आपको हजारों मिलेंगे जहाँ दोनों वर्किंग है पर लड़की कम कमा रही है, लड़का ज्यादा कमा रही है, और लव मैरिजेज में भी ऐसे मिलेंगे। तो ऐसा होता है। अब जब ज्यादा कमा रहा है लड़का तो अधिकतर आप केसेस ऐसे ही सुनने को मिलेंगे जहाँ लड़के को एलिमनी देनी पड़ी। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि अपनी जान छुड़ाने के लिए ऐसे ही होता है, लड़के को ही देनी पड़ती है। जब आप बातें ऐसी सुनते हैं तो आपके दिमाग में भी बैठ जाता है, हाँ जी लड़के को ही देनी पड़ती है, हम्म, हाँ जी बच्चा तो माँ के साथ ही रहता है। यू नो, हाँ। ये हमारे दिमाग में बनाई हुई बातें हैं, कानूनी बातें नहीं है। राइट राइट। कानून ऐसा नहीं कहता, पर फिर एक धारा चल पड़ता है। बिल्कुल। आपने देखा होगा, अगर एक गाड़ी रेड लाइट जंप करती है तो उसके पीछे जी। एक गाड़ी नहीं, 10 गाड़ियां रेड लाइट जंप करती है। कम करती है जी। पर 4 गाड़ियां अगर खड़ी होती हैं तो पांचवी भी आके खड़ी हो जाती है। खड़ी हो। राइट ठीक है ना? ये डर रहा है सर। और हम वी आर ऑल क्रिएचर्स ऑफ व्हाट वी सी। हम जो देखते हैं हमें लगता है कि ऐसा ही होता राइट। करंट सिचुएशन सर इस समय आपके हिसाब से क्या चल रही है इन केसेस ऑफ, अगर हम डिवोर्स की ही बात करें जनरिकली इसको सिचुएशन को लें, और इसका कुछ आगे बेटर हो, थोड़ा सा इसमें चेंजेस आए, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट है। सर देखिए, एक लॉ इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज लाने का प्रयास हुआ था, पर उसमें भी फेमिनिस्ट ने जो है अपना पूरा सहयोग रखा सरकार के साथ। 2014 से राज्यसभा में ये कानून पास हुआ है। हुआ वो दैट? फेमिनिस्ट की तरफ से ये कि जब डिवोर्स होवे इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे, तो कोर्ट लड़के की अप टू 50% प्रॉपर्टी लड़की को दे दे। ओके। अब अगर इस तरह के कानून आ जाएंगे तो ये कोई न्याय संगत बात नहीं है कि मैंने जो सारी जिंदगी कमाया वो मैं उसकी 50% उठाकर लड़की को दे दूं। पर इसका काउंटर है कि जेफ बेजो ने पता नहीं कितने बिलियन की एलिमनी दी है। जी जी ऋतिक बिल्कुल। रोशन ने, आपने सुना होगा, मुझे नहीं पता कितना बहुत। सच है नहीं सुना है, बट सुना है नहीं, कि 300 करोड़, करोड़ों चार में सौ है। करोड़ हाँ, 300, बिल्कुल। 400 करोड़ सुजैन हाँ को दिए है। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल जब इस तरह की बातें आप अखबारों में पढ़ते हैं तो लड़कियों के एक्सपेक्टेशन भी उस हिसाब से हो जाती है। हो जाती है, सही कह रहे लड़का कमाता नहीं है, रिक्शा चलाता है, लड़की कहती है 10 लाख से कम नहीं लूंगी। अरे भाई, हैं। उसके पास 10 लाख होते तो उसको रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं, तो ब्याज पे ही कमा लेता इससे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो घर बेचे, चाहे वो कैसे भी करे, मेरे को लाके दे। तो सो सर जी। ग्रीड का कोई इलाज नहीं है, पर कानून में बदलाव होना चाहिए। नंबर 2, कानून में एक तो ये प्रोविजन ऑफ इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज ऐड होना चाहिए। दूसरा, डिवोर्स शुड बी मेड फास्टर एंड टाइम बाउंड। फैमिली कोर्ट हमने बनाई, या तो फैमिली कोर्ट हटा देनी चाहिए, बिल्कुल हटा दो, या फिर इनकी इतनी संख्या तो कर दो कि ये कानून जो है 6 महीने में, 1 साल में केस का फैसला तो हो गए। राइट। इसको खत्म किया जाए जो भी केस आए। हाँ जी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सर एक पॉइंट और है कि डू यू फील, एक शादी हुई कुछ सालों बाद, चलिए बात या नौबत आ रही है डिवोर्स पे, आपको कुछ ऐसा भी लगता है, ये एक बड़ा जेनरिक सा सवाल है, कि कुछ फैमिली की वजह से हो गया या फैमिली प्रेशर डाल रही है उनकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ गई, कुछ ऐसा भी पॉइंट्स उठ सकते हैं या ऐसे कारण बनते हैं कभी कभी? होते जरूर हैं, पर मैं एक बात मानता हूँ, जो काम का कच्चा नहीं होता जी। उसके ऊपर ये प्रेशर काम नहीं करते। नहीं करते। जब अगर आपके ऊपर ये प्रेशर काम कर रहे हैं, किसी के ऊपर भी ये प्रेशर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका खुद का भी फॉल्ट है। और अगर सो हाँ। भी
ये पत्नी अपने आपस की बातें किसी और को ना बतावे, तो उसके ऊपर प्रेशर ला सकता है? बिल्कुल। बेसिकली द आउटसाइड प्रेशर और whosoever is outside, I mean सर, फैमिली को वट मानना एवर पड़ेगा। कम फ्रॉम आउटसाइड, वट एवर इज नॉट इनसाइड यू कैन नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड, यस, एग्री एग्री। और इसमें सर ऑल्सो, चलिए एक ये एंगल लेना चाहूंगा। चलिए बहुत से लोग होंगे जो इस दौर से गुजर रहे होंगे, so from a legal point of view they must be getting in touch with lawyers, वो पुलिस भी बुला लेती है, उन पे भी आपने जैसे का प्रेशर तो पड़ जाता है, उनको उस दौर से गुजरना पड़ता है। तो व्हाट इज इट दे शुड डू? आई मीन एटलीस्ट अपने आप को कम से कम दिमाग तो शांत रखना ही पड़ता है, नहीं तो मतलब बंदा ही कुछ खत्म ही ना सर हो जाए। देखो, बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं जी हमारे वकील साहब ने ये एडवाइस किया है, मेरे को फलाने ने ये एडवाइस किया है। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, लॉजिकली आपको ठीक लगती है ये बात? हाँ, आपको तलाक चाहिए, पर आप कोर्ट में बोलना जी मुझे इसके साथ रहना है, तो सामने वाली बाध्य हो जाएगी आपको तलाक देने के लिए। कैसे? कैसे? या दोनों पक्ष नहीं रहना चाहते एक दूसरे के पास, दोनों को वकील साहब ने समझा रखा है, जाके बोलना है जी मेरे को तो रहना है। हाँ, लड़की तू ये नहीं बोलेगी ना मेरे को नहीं रहना, तो तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। और लड़के राइट, तू नहीं बोलेगा ना कि मेरे को रहना है, हाँ, तो ये तेरे को जेल भेज देंगे। बिल्कुल, जो चीज आपको लॉजिकल नहीं लगती है वो ठीक नहीं है, और कोई भी कानून इलॉजिकल नहीं हो सकता। राइट, अगर ठीक, आपको तलाक चाहिए तो आप बोलिए मुझे तलाक चाहिए। अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए तो बोलिए मुझे मेंटेनेंस चाहिए। अगर आपको अपना सामान वापस चाहिए तो बोलिए मुझे मेरा सामान वापस चाहिए। मुझे इस लड़के के साथ रहना है, पर इसके माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी। इस लड़के के साथ रहना है, इसके माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी, पर रहूंगी तब जब ये लड़का मकान ले लेगा। मेरे को इस लड़की के साथ रहना है, पर रहूंगा तब जब ये अपने माँ बाप से बात करना बंद कर देगी। अरे क्या हाँ, कर रहे हो यार? इलॉजिकल बातें। शादी शादी चला रहे हो, उसके ऊपर राज करना चाह रहे हो। राइट, यस, बिल्कुल। जो अब अगर हम कहें सर आने वाली जनरेशन है अब से, उनको व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव? क्योंकि आज के टाइम से जो अब आने वाले लोग हैं, कल को वो लोग भी शादी करेंगे, सब बड़े होंगे, और आगे जाके आप क्या बोलना चाहेंगे उनको, इस अपने पर्सपेक्टिव जो आपने देखा है लाइफ में? ये मेरे को ना एक फिर एक चुटकुला याद आ गया, माफ करना। बिल्कुल सर, अरे सर, आपके मैं वो एक पढ़ता बार एक रहता हूँ फेसबुक पे। तो एक लड़के को फोन आया ससुर का, जी। कहता है यार तुम्हारे साले के लिए लड़की देखने चलना है, तुम भी चलो। कहता है जी आप भी जाओ, यहाँ तो मेरा डिसीजन गलत हुआ पड़ा है। तो भाई, ओके। मेरे तो खुद की एक शादी नहीं चली, तो मैं एडवाइस देता हूँ इस पर शायद अच्छा नहीं लगूंगा। पर जी, एक चीज जो मैं हमेशा सोचता हूँ, जब मेरी पहली शादी हुई थी और अब शादी, खैर मैं दोबारा भी शादी कर ली है, तो मैं ये सोचता हूँ कि जब तक आप मेंटली रेडी नहीं हो आपको शादी नहीं करनी चाहिए, राइट, किसी भी इंसान को, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और सिर्फ क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर है मुझे शादी कर लेनी है, ऐसा सोच के भी शादी नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज, शादी करते हो तो भी एक दूसरे के साथ समय बिताओ, पर एक दूसरे को इंडिपेंडेंस भी दो। बहुत से मैंने कपल्स ऐसे देखे हैं जो एक पक्ष, और खासतौर पे लड़कियां आजकल, वो लड़के पे इतना हावी रहती हैं, क्योंकि शायद मैं लड़कों के किससे ज्यादा सुनता हूँ तो इसलिए शायद ये एक वजह हो सकती है, पर दैट्स लड़कियां राइट, मैंने देखी है वो इतनी पोजेसिव हैं, इतना हावी रहती हैं, राइट, ऑलमोस्ट गुलाम बना के रखना चाहती हैं। दूसरी बात, आजकल कानूनों की वजह से या किसी भी वजह से लड़कियों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो मेरा अपना असेसमेंट है। राइट, उनको अथॉरिटी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। और हस्बैंड के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो हैं, इस तरह की लड़कियों से बचो भाई, अगर कोई लड़का राइट, सुन रहा है। और लड़कियां अगर सुन रही हैं तो मैं उनको कहूंगा कि इस तरह की हरकतें मत करो। सामने वाला इंसान है, आप इंसान से शादी करो, मशीन से नहीं, रोबोट से। बिल्कुल, बिल्कुल। सो एटलीस्ट वन हैज टू बी ह्यूमन बीइंग एंड बिहेव लाइक अ ह्यूमन ये बीइंग।
यस। तो एटलीस्ट ये लड़का लड़की वाला ही भेदभाव को छोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, अब जब दोनों मैच्योर हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों सक्षम हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी शेयर्ड होनी चाहिए ना। जी जी। क्योंकि आई ऑल्सो फील कल को बच्चे होंगे तो उनकी भी आगे मैरिज होगी, तो कल बिल्कुल को बिल्कुल। उनके साथ कभी कुछ गलती से ऐसा ना हो, बट तो बहुत सी वही होता कंट्रीज है। हैं अनुराग, आप जानते हो, आप मेरे से ज्यादा जानते हो इस बारे में। जापान है, जी जी। अ, ओके बहुत सी ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं, वहां पे लड़के शादी ही नहीं करना चाहते, डरते हैं। ओके। डरते हैं, वाकई डरते हैं, शादी नहीं करना चाहते। नहीं करना चाहिए सर। अगर थोड़ा सा हम इंडिया से बाहर जाएं, वेस्टर्न कंट्रीज या आउट ऑफ इंडिया कंट्रीज में क्या रहता है, इफ सच अ देखो यार, मैं सिचुएशन। बहुत ज्यादा वर्ल्डली वाइज नहीं हूँ, कानून का ज्ञान तो मुझे हिंदुस्तान का ही और सोसाइटी में मैंने यही की देखी है। जी अ, कानून जो है वहां पर जेंडर न्यूट्रल कुछ हद तक है। ओके। अमेरिका में जैसे या वेस्टर्न यूरोप में मैं बहुत सी कंट्रीज के बारे में सुनता हूँ, तो वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस जो है जेंडर न्यूट्रल कानून है। डोवरी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि डोवरी इंडियन ओरिजिन नहीं है, डोवरी का बेबीलोनियन ओरिजिन है, और कम से कम 50 कंट्रीज के अंदर एंटी डोवरी लॉज हैं, पर इन ओके। कानूनों का मिसयूज नहीं है। मिसयूज अगर नहीं। मिसयूज हो रहा है तो उन कंट्रीज ने मिसयूज क्लॉज डाला है, बांग्लादेश ने डाला है, नेपाल ने डाला है, पाकिस्तान ने डाला है। ठीक है, उन्होंने मिसयूज क्लॉज डाला है और इसको अरेस्ट करने का प्रयास किया। तो ओके। वहां पे लोग शादी कंपेनियनशिप के लिए करते हैं, शादी तोड़ना बहुत आसान है। ठीक है, अगर नहीं बन रही है तो जेनरली नहीं बन रही है तो कोर्ट उन्हें कहता है कि आप अलग हो जाए। जी जी। या तो हमारे अंदर उस तरह की मैच्योरिटी आनी चाहिए, या कानून उस तरह से मैच्योर होना चाहिए कि इस सोसाइटी को इस तरह के कानूनों की आवश्यकता है। हम कानून तो उनको देख के बना देते हैं, पर हम ये हाँ रियलाइज नहीं करते कि हमारी सोसाइटी उन कानूनों के लिए तैयार है। क्या है। अगर तैयार नहीं है तो क्या हमने वो एफर्ट किया है कि इनको सेंसिटाइज किया जाए कि इस तरह के कानून की आवश्यकता आ रही है और इस तरह का कानून बनेगा। इसमें फिर ये भी रह जाता है कि मान लीजिए जैसे कुछ, मान लीजिए कुछ भी टॉप चीज पे एक नया लॉ क्रिएट हुआ, तो उसमें कुछ ना कुछ एक लूप होल तो छूट ही जाता है, इसका मतलब, या उसको देखिए, प्रॉपर कोई भी कोई हार्ड। कोई भी कानून प्रॉपर जस्ट 100% जस्ट नहीं हो सकता। राइट। पर आप मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाते हो, तो जाल ऐसा होता है कि उसमें मछली ही फंसे, हम्म छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ना फंस जाए। हम्म। ठीक है ना। आप जाल कभी कभी ऐसा टाइट जाल तो नहीं बिछाते हो कि इसमें सब कुछ फंस जाए, उसमें कुछ मछलियां भी हो। राइट राइट। तो भाई बिल्कुल। आपको कानून से मछलियां ही पकड़नी है जो क्रिमिनल्स हैं। हम्म आपको हम्म ऐसा थोड़ा ना कि तालाब से पूरी जिंदगी खत्म कर देनी है, हम्म। कि तालाब में कोई बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी जीव नहीं बचेगा, ऐसा तो नहीं करना ना। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। ऑल्सो सर, जैसा कि ओवरऑल बात हुई थी केसेस को लेके, सो देर, जैसा कि आपने भी कुछ एग्जांपल्स बताए, कुछ एग्जांपल मेरे सामने भी कुछ समय पहले आए थे, जहां जैसे फीमेल्स ने खुद ही फॉल्स केस ऐसा बनाया कि अपने ही रिश्तेदारों को लेके, और वो पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रांग थे, जिस वजह से आप मानिए हस्बैंड को जेल ही हो गई। हम्म। तो और जबकि उसको फिर बाद में ऐसा छोड़ा कि भाई जज ही नाराज हो गए कि हाउ डेयर यू पुट हिम इन जेल एंड ऑल दैट। तो ऐसे मतलब फॉल्सिफाइड केसेस भी सामने आ रहे हैं, तो इज द लॉ आल्सो टारगेटिंग कि भैया ये भी नोट करके रखा जाए। सर देखिए, कानून जो बनता है या बिगड़ता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। राइट। ऐसे बहुत से केसेस देखने सुनने को आते हैं कि मिसयूज होता है। हालांकि एनसीआरबी के डेटा को अगर मैं जस्टापोज करूं तो लगभग 98 से 99% दहेज के मुकदमे झूठे होते हैं, 70 से 80% रेप के मुकदमे झूठे होते हैं। पर कानून मिसयूज क्लॉज जब तक नहीं आएगा इन कानूनों में, चाहे वो कोर्ट लेके आए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लेके आए, या राइट सरकार लेके आए, जब तक इस तरह की चीजों में बदलाव नहीं आएगा ये मिसयूज बढ़ता ही रहेगा। राइट। राइट सर। सर आज के लिए मेरे पास इतने ही सवाल थे आपके लिए, एंड
I think it was really great having you in the discussion today. जाते जाते सर एक चीज जरूर बताइए, लॉकडाउन आपका कैसा रहा? सर लॉकडाउन में हमने पूरी सावधानी बरतने की कोशिश करी है, और ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में बैठ गए, कुछ ना कुछ नया करते रहे हैं। बहुत पढ़ा हूँ, मैं किताबें पढ़ी हैं। मैंने यूट्यूब चैनल अपना लॉन्च किया था, ड्यूरिंग लॉकडाउन ही शुरू किया था। जी तो ठीक है, प्रयास है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं जो मेरी वेबसाइट shonikapoor.com पे अवेलेबल है, तो आप पढ़िए सर। कोशिश की है, बाकी हमने भरपूर फैमिली के साथ समय बिताया। कोशिश राइट। की है कि इसको भी यादगार बनाया जाए। अब इसको हम लड़ नहीं सकते जिस चीज से, तो वो जैसा है वैसा रहेंगे। बिल्कुल कोशिश बिल्कुल। है कि सुरक्षित रहें, आप सब भी सुरक्षित रहें, सेफ रहें। जी जी। जहां तक हो सके बाहर ना निकले जब तक जरूरी ना हो, बहुत जरूरी ना हो। और सर प्लीज डू मैं ऑल्सो मैं टेल अस अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। एक बार नाम बता दीजिए, योर यूट्यूब चैनल सर, एंड वेबसाइट मेरी के बारे एनजीओ का नाम सहोदर है। सहोदर में। का जी सर। मतलब होता है एक ही गर्भ से उत्पन्न लोग, सिबलिंग्स जिसको हम कहते हैं। तो सहोदर मेरी एक एनजीओ है जिससे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मेरी वेबसाइट है shonikapoor.com। आप उस पर भी आ सकते हैं, उस पर आर्टिकल्स देख सकते हैं। मैं अपने ही नाम से एक यूट्यूब चैनल भी रन करता हूँ, और उस राइट। पर भी कुछ कानूनी बातें शेयर करता रहता हूँ। आप फेसबुक या ट्विटर पे जुड़ना चाहते हैं तो उस पर कुछ चुटकुले और मिल जाएंगे आपको। जैसा बिल्कुल बिल्कुल। बताते हैं कि कुछ लोग एंजॉय करते हैं। मैं जोक्स एक ही पे मारता हूँ, हस्बैंड और वाइफ के ऊपर। वो मैं गो थ्रू करता हूँ एंड दैट इज रियली वन थिंग और आई। जी अनुराग, आपके साथ बड़े समय के बाद बात हुई इस चैनल के थ्रू ही, और आपका ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैंने सभी तो नहीं, आपके 4-5 वीडियोस और भी देखे हैं। यू आर डूइंग अ गुड जॉब, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है सर। राइट सर। जी सर, ठीक थैंक यू है। सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड थैंक यू अनुराग फॉर हैविंग मी हियर। आई लाइक टू बी राइट। हियर अगेन एंड अगेन, बिकॉज आज जो हमने एब्सोल्युटली बातें करी है, इस तरह की बातें जो है अनस्ट्रक्चर्ड, खुल के दिल से मैंने बिल्कुल। किसी इंटरव्यू में नहीं की। जी। नेक्स्ट सेशन में थोड़े टाइम बाद हम कुछ एक नया टॉपिक लेके उसको भी डिस्कस करना डेफिनेट चाहूंगा आपसे। डेफिनेट तो दैट वुड डेफिनेटली आल्सो डेफिनेटली बी वेरी नॉलेजेबल फ्रॉम योर एंड सर। राइट सर। डेफिनेटली डेफिनेटली। राइट। थैंक यू शॉनी राइट सर। सी यू सून। राइट राइट। बाय बाय।